अच्छा, तो हम कर रहे थे, हमने टेम्पलेट डाउनलोड करना है यूनिटी एसेट स्टोर से। तो जो नया टेम्पलेट इन्होंने नई जो अपडेट की है ना, उसका लिंक ये है। ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो इस लिंक पे जाते हैं। ये कॉपी करके मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे। अच्छा, ये है फर्स्ट पर्सन जो है, ये फर्स्ट पर्सन कंट्रोल का है। और दूसरा हम देखते हैं थर्ड पर्सन कंट्रोल का। ये भी फर्स्ट पर्सन का है। स्टार्टर एसेट्स पे जाना है। स्टार्टर एसेट में ये कैरेक्टर कंट्रोलर, ये थर्ड पर्सन कैरेक्टर कंट्रोलर, ये आपने ओपन करना है, ये वाला। इसको यहाँ पे अभी मेरे पास ये यूनिटी में ऑलरेडी मौजूद है ना, तो इसलिए ये यहाँ पे ओपन इन यूनिटी आ रहा है। जब आपके पास ये यूनिटी में मौजूद नहीं होगा तो आपके पास यहाँ पे आएगा ऐड टू यूनिटी। तो उस पर क्लिक करेंगे या यहाँ पे इस पर भी क्लिक करेंगे ताकि आपके पास ये सेव रहे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ जाएगा ओपन यूनिटी एडिटर। तो अपना यूनिटी एडिटर ओपन करेंगे, जो कि हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। तो मैं दूसरा यूनिटी एडिटर नहीं ओपन कर रहा। और यहाँ पे हमारे पास खुल जाएगा पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर में हमारे पास मैंने जितने भी अपने साथ एसेट्स सेव किए हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो उसमें जाके हमने देखना है कि हमने कौन से एसेट पे काम करना है। अगर पैकेज मैनेजर पे आप पे नहीं वहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो यहाँ पे जाना है आपने इन प्रोजेक्ट्स में, पैकेजेस में जाके माई एसेट्स में जाना है। माई एसेट्स वो एसेट्स होंगे जो आपने एसेट स्टोर की वेबसाइट से अपने साथ ऐड किए हुए हो। तो माई एसेट्स पे क्लिक करेंगे और इस पे थर्ड पर्सन जो हमारे पास स्टार्टर एसेट है इस पे आएंगे और इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट मतलब अपने यूनिटी प्रोजेक्ट में इसको लेकर आना। फ़िलहाल हम इसको स्किप करते हैं, बाद में अगर कोई मसला आता है तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं डिपेंडेंसी को। ये हमारे पास इंपोर्ट होने लगा है अब हमारा स्टार्टर एसेट। इस एसेट की ट्यूटोरियल वीडियो भी है, ये भी आप देख ले ज़रा। Introducing Unity's ये मैंने डाउनलोड की थी यहाँ पे, वो देख लेते हैं। Introducing Unity's new starter assets, a set of lightweight character controllers now available for free on the Unity Asset जब Store. हम ये डिप्लॉय करेंगे तो इस तरह हमारे पास ये इस तरह काम करेगा। अभी देखते हैं कि ये इसमें क्या क्या होता है। In this overview video, we'll show you how to import, customize, and use these assets to kick off your first and third person games. By the end of this video, you'll learn how to deploy the controllers in your environments and how to customize their settings. And with that said, let's jump right in. The Unity Starter assets provide game creators with foundational character controllers that cover a majority of use cases for first and third person games. These controllers are fully compatible with the standard
universal and HD render pipelines for Unity versions 2020.3 LTS. Plus, they're modular so you can customize them to fit your project needs. The starter assets consist of 2 different packages on the Unity Asset Store. You can find them on the store through the search function or use the links in this video's description. Click on Add to My Assets so you can access them via the Unity Package Manager. Back in the editor, download and import the assets into your project by going into Window, Package Manager, and then My Assets. There are also 2 Unity packages required for the starter assets, Cinemachine and the Input System. They'll both be automatically installed when you import either of the starter assets into your project. You can also use the tool script included with the starter assets to ensure you have the packages you need. You can access them via the Tools option within the Editor menu bar. From there, you'll find a few options for the starter assets you've imported. Reinstall dependencies will verify if the starter assets package was successfully imported into your project and that all required features are ready and installed. If not, it will automatically re-trigger installation of dependency packages. Reset First Person Controller automatically adds the first person controller setup to your scene or resets the required elements. अच्छा, इसको हम साथ साथ एक्सप्लोर करते हैं। एसेट हमारा हो गया होगा डाउनलोड। अच्छा, एसेट हमारा हो गया, इंपोर्ट हो गया है और यहाँ पे एसेट्स में जाके देखेंगे तो ये पड़ा हुआ है हमारा स्टार्टर एसेट। और स्टार्टर एसेट में हमारे पास एनवायरनमेंट पड़ा हुआ है। एनवायरनमेंट में आर्ट का एक फोल्डर है, उसमें हमारे पास ये मटेरियल्स पड़े हुए हैं। मटेरियल्स वो होते हैं जो किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं, यानी उसका कलर, उसकी शेप वगैरह को डिफ़ाइन करने के लिए मटेरियल्स पड़े हुए हैं। हमारे पास ये सारे मॉडल्स पड़े हुए हैं जो मॉडल इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हुए हैं। स्काई बॉक्स है, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये इसको स्काई बॉक्स कहते हैं। तो ये स्काई बॉक्सेस हमारे पास 2 पड़े हुए हैं। टेक्सचर्स हमारे पास पड़े हैं। प्रीफेब्स हैं। प्रीफेब कहते हैं एक ऐसी पैकेज को जो आपने 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें, 5 चीज़ें या गेम ऑब्जेक्ट में ला के आपने एक चीज़ बनाई हो, उसको प्रीफेब कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे मेन कैमरा है और डायरेक्शनल लाइट है। हम फर्ज करें मेन कैमरा के अंदर डायरेक्शनल लाइट रखते हैं और इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लेके आते हैं प्रीफेब में, तो ये हमारे पास ये प्रीफेब बन जाएगा। उसी नाम से बनेगा जो उसका पेरेंट होगा, यानी पेरेंट इसका डायरेक्शनल लाइट है, अंदर चाइल्ड उसका मेन कैमरा है, तो इसके नाम से ये हमारे पास प्रीफेब बन गया। ओके, अच्छा, हम जाते हैं अभी थर्ड पर्सन कंट्रोलर में, फोल्डर में। वहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं सीन्स और उसमें एक सीन बना हुआ है प्लेग्राउंड का सीन। ये जो सीन है, ये प्लेग्राउंड का सीन बना हुआ है, ये ओपन करते हैं हम। हमारे पास अब ये सीन ओपन हो गया है, लेकिन इसमें सारा कुछ हमारे पास जो है ना पिंक आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट पे जो मटेरियल्स लगे हुए हैं वो हमारे उसमें उसके शेडर जो है या उसके कलर जो है वो हमारी यूनिटी में अभी फ़िलहाल नहीं है। तो वो सेट करने के लिए ये शायद किसी के लिए प्रॉब्लम हो, किसी के मतलब यूनिटी में, या किसी की यूनिटी में ये पहले से सेट हुआ हो। लेकिन अगर जिसका ये प्रॉब्लम आता है तो वो यहाँ से जाके करेंगे सेट, इसको एनवायरनमेंट ओपन करेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, उसके इंस्पेक्टर विंडो में जाएंगे। इंस्पेक्टर विंडो में जाके उसके मटेरियल्स में जाएंगे। ये हमारे पास मटेरियल का फोल्डर ओपन हो गया है। जो मैंने बताया था आपको कि एनवायरनमेंट में आर्ट में जाके वहाँ पे मटेरियल्स पड़े हुए हैं, तो उनमें सब मटेरियल्स को सेलेक्ट करेंगे हम एक साथ ही। इसकी देखते हैं हम शेडर, तो इसके शेडर ख़राब है, इसलिए ये
हमारे पास सही नज़र नहीं आ रहा। तो इसके शेडर हम चेंज करते हैं। मोबाइल के लिए बना रहे हैं गेम, तो मोबाइल में जाके बम डिफ्यूज़ सेलेक्ट कर लेते हैं या कोई और भी सेलेक्ट कर ले तो भी ये सही चलेगा। तो इसके शेडर अब जो है ना वो आ जाएंगे वापस। आ गए हैं। अच्छा, अभी हम जाते हैं अपने प्लेयर पे। प्लेयर के शेडर जो है ना ये भी उड़े हुए हैं, तो प्लेयर के शेडर भी इसी तरह फिक्स करेंगे। मटेरियल में जाएंगे, ये 3 शेडर जो है ना ये भी हमारे पास अभी अनअवेलेबल हैं, तो इनको हम करते हैं मोबाइल से बम डिफ्यूज़ में। तो ये हमारे पास हमारा करेक्टर आ गया। सेट हो गया है सारा कुछ। अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये नीचे देखे तो एक एरर आया हुआ है डिपेंडेंसी का। ये मैंने डिलीट कर दिया है, अपना जो एसेट था वो डिलीट कर दिया है ताकि उसकी डिपेंडेंसी जो पहले हमने स्किप की थी तो वो दोबारा से हम डाउनलोड इंपोर्ट करके इंस्टॉल कर सके। तो मैं दोबारा इंपोर्ट कर रहा हूँ इसको। इस बार इनको अपग्रेड करते हैं। ये अक्सर आता है उन एसेट्स में जो फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होते, मतलब कि यूनिटी वर्जन आगे अपडेट होते रहते हैं। एसेट तो एक बार बन जाए तो उसमें कभी कभी उसमें चेंजेस करते हैं, तो उसकी डिपेंडेंसीज चेंज होती रहती है। तो जिस एसेट के लिए डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड हो तो वो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। उसके बगैर भी कुछ एसेट चल जाते हैं, कुछ एसेट्स के लिए वो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। तो हमारा चूँकि नहीं चल रहा था, मैं यहाँ पर कीबोर्ड पे प्ले कर रहा था, तो दोबारा हमने इंपोर्ट किया और दोबारा से हम उसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें आपके सर के ऊपर से जाएंगी, जैसे डिपेंडेंसीज हो गया, ये चीज़ें या कोडिंग वगैरह की कोई चीज़ें, लेकिन इसकी टेंशन इसलिए नहीं लेनी कि इसके साथ हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं है। हमारा इंटरेक्शन जो होगा वो एक्चुअल जो गेम के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ होगा और गेम के मॉडल्स के साथ होगा, जो कि ईजी है, आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। बिगिनर बंदा भी ये गेम जो है ना डेवलप करना सीख जाता है ईजीली, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है इसमें। अनाउंस कर देना, इनकी अटेंडेंस भी ले ले। जब तक ये हो रहा है ना, जब तक ये हो रहा है तब तक अनाउंस कर दे अटेंडेंस। वो आप ना अटेंडेंस लगाना मस्ट है, आप 8% अटेंडेंस कंपल्सरी, अगर 8% अटेंडेंस नहीं होगी तो नहीं आप नोटिस में नहीं लिखा है। तो अटेंडेंस का कोशिश करें कि अटेंडेंस अपनी मस्ट लगाएं, और जो है ना जितनी अटेंडेंस ज़्यादा होगी इसका मतलब है आपने क्लास ली है तो आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होगा गेम्स के बारे में। अगर आपने क्लास ही नहीं ली तो आप आगे जाके ना अटेम्प्ट ही नहीं कर सकेंगे, ना इस क्वेश्चन मतलब कि एग्ज़ाम होगा वो ना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में तो वैसे भी आप जो है ना फिर वो चीज़ मिसिंग होगी आपकी।
अभी कौन कौन सी गेम्स खेलते हो आप लोग? हाँ? पीसी गेम्स या मोबाइल गेम भी खेलते हो? अच्छा, फीमेल्स खेलती है कोई गेम? मोबाइल पे ज़रा इंस्टॉल करें ना, फिर आप जाके कोई गेम्स। आपकी फ़ीमेल्स की अपनी कैटेगरी है, उसकी अपनी फीमेल्स की अपनी गेम्स पड़ी हुई है। उसमें मेकअप वाली गेम्स है, उसमें जो है ना कोई कोई जगह मैनेज करने की गेम्स है, पजल्स भी गेम काफ़ी सारी है, और भी काफ़ी सारी गेम्स है। तो वो ज़रा एक्सप्लोर करके इंस्टॉल करके खेल लेना, थोड़ा फील तो ले। गेम डेवलपमेंट में आया, थोड़ा गेम्स के फील तो ले लें। जिनके पास इंस्टॉल है वो साथ साथ कर रहे हैं ना? हाँ, अब इससे बड़ी तो क्या कर सकते हैं? ग्लासेस लगा दें। अटेंडेंस लगा रहे ये अगर बंद होते थे तो लाइट नहीं पड़ती, वो वाले तो बंद हो जाएंगे। वो तो बंद हो जाएंगे। ये शायद खराब है। इम्पोर्ट कर लीजिए पैकेजेस, इम्पोर्ट यूनिटी पैकेज। अभी दोबारा फिर ओपन हो गया। अच्छा, Reset third-person controller armature will automatically add the third-person controller setup to your scene and use a humanoid armature to represent the player. Reset third-person controller capsule will set up a third-person controller in your scene, but using a default capsule primitive instead of the humanoid model. For this walkthrough, we'll be setting up the starter assets using the Unity 2020.3 LTS version and the standard renderer pipeline, plus an asset from the asset store called Dreamscape Nature Metals Environment from PolyArt Studio. If your project is using the Universal Render Pipeline or HT Render Pipeline, you can easily update the starter assets material to work with your project by going into Edit, Render Pipeline, and then Update Project Materials. More details about this step are listed in the video description. Let's start by taking a look at the first-person controller. We can test it out by opening its demo scene found inside the project window via Starter Assets, First-Person Controller, Scenes, and Playground Scene. In play mode, we can move around the environment. अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर है। इसमें देखिए कोई भी हमें प्लेयर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसकी कैमरा मूवमेंट और सारा कुछ वही है। Using WASD, arrow keys, or the left joystick if we have a gamepad connected. We can look around by moving the mouse cursor or a gamepad's right joystick.
We can also press Shift to sprint and space to jump. You'll notice that there's also a set of mobile controls in the scene that are disabled by default unless you need them. That's because we've included import support for touchscreens in addition to keyboard, mouse, and gamepad. We'll review how to set these up for your projects in a bit. Now, it's worth noting the 3 prefab game objects that bring the first-person controller to life: main camera, player follow camera, and player capsule. Main camera contains the Cinemachine brain component that will be used by our player's follow camera. The player follow camera contains the Cinemachine virtual camera that moves and rotates based on the player's position and look direction. Lastly, player capsule contains the input actions we're using with the input system, along with the first-person controller scripts, which let you fine-tune the controller's behaviors. You can change settings like the player's move or sprint speed, jump height, ground detection, object push abilities, and more. Going back to where we want to add our first-person controller, let's remove our scene's current main camera and select Tools, Starter Assets, Reset First-Person Controller. You could also use the project window and navigate to Starter Assets, First-Person Controller, Prefabs, select the player capsule, player follow camera, and the main camera, and drag them into the hierarchy. Set the player capsule's position to where you want it to start in your scene. Lastly, verify if the player follow camera's Cinemachine virtual camera component has its follow target set to the player camera root object within the player capsule prefab. You're now ready to explore your scene's environment in first-person mode. Head into play mode to try it out. Now let's check out the third-person controller. We can find its playground scene under Starter Assets, Third-Person Controller, Scenes, and Playground Scene, and test that out in play mode. Just like the first-person version, this controller is made up of a main camera prefab, a prefab for the player armature, and a prefab for the follow camera called player follow camera. The player armature prefab includes the third-person controller scripts that you can customize along with a rigged model to represent the player. We'll show you how to swap this out with your own character later in this video. As with the other starter asset, there's also a set of controls available for mobile devices. Let's bring this controller into our Meadow environment to review the setup process. We can go into Tools, Starter Assets, and Reset Third-Person Armature. We can now jump into play mode and move our character around with a keyboard and mouse or gamepad. If you want a controller that works for touchscreen devices, regardless if you're using the first or third-person asset, just add the UI event system and the UI canvas joysticks or touch zones prefab to your scene. Once the input prefab is in your scene, drag and drop the player prefab into the Starter Assets inputs field on the UI Canvas controller component. You can get them from the Starter Assets Mobile Prefabs folder. The joystick prefab will let you use virtual joysticks to move your character around your scene, while the touch zones prefab will move your character towards the area of the screen that you're pressing. With the Starter Assets third-person controller, swapping in your own character is as easy as replacing the armature's geometry and updating the controller's animator. To start, make sure your custom model's rig is set to humanoid. Next, use the hierarchy to unpack the player armature prefab and look for the controller's default mesh under player armature, geometry, and armature underline mesh. Delete it and replace it with the FBX prefab of the model you want to use. Lastly, select the parent player object and change the avatar in its animator component to be the avatar that came with your custom character. You are now ready to try out the Unity Starter Assets. We're excited to see what the controllers help you create. You can learn more about the assets in the Unity blog post linked below, and you can also show off your creation with it over on the official Unity Discord server. Thanks for watching.
आधे से ज़्यादा वक्त जो है ना हमारा लोडिंग में जाए। काफ़ी हेवी सिस्टम चाहिए होते हैं इसके लिए। मैंने तो घर में पीसी रखा हुआ है, पीसी पे काम जो है ना वो अच्छा होता है यूनिटी पे। तो लैपटॉप से वैसे भी काम स्लो होता है, तो गेम्स के लिए या मॉडलिंग के लिए थोड़ा आगे आ जाए यार, माइक है नहीं तो आगे आ जाए। ये भी जगह है स्पेस। माइक वो कब तक आने वाले माइक्स? माइक कांग्रेस भाई तो बोल रहे हैं। दानिश कल ग्रुप में बात कर रहा था माइक्स पे। पीछे वाले फैंस बंद कर लो। हाँ तो सर आपको नहीं चल रहा है अपने लैपटॉप क्यों कह रहा हूँ मैं, अगर इस पर नहीं चल रहा है चल रहा है ये भी पूरा इसे हो जाता है। यूनिटी जो है वो टाइम ज़्यादा लेता है। इसके लेब मैनुअल और कोर्स का जो स्लाइड है एक ही ये वो लाइब्रेरी इंस्टॉल अच्छा, पहला जो हमने इसे डाउनलोड किया था उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं थी, इसलिए वो एरर दे रहा था, प्ले नहीं हो रहा था। तो दोबारा से उसकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल की है और अब देखते हैं इसको प्ले कैसे होता है। ये हमारी गेम विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। इसमें अब इसका बना हुआ एक WASD से इसकी मूवमेंट है, तो मैं कीबोर्ड पे दबा रहा हूँ WASD वगैरह, तो ये मूवमेंट कर रहा है, जा रहा है आगे। शिफ्ट के साथ ये तेज़ भागता है, इसके साथ जंप करता है। ठीक है,
अब देखते हैं ज़रा इस प्लेयर को कि प्लेयर पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। प्लेयर पे पहले तो लगा हुआ है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब कि वो एनवायरनमेंट में कहाँ पे पड़ा हुआ है। एनवायरनमेंट में उसकी जगह है, उसकी डायमेंशंस है 0 0 0 और उसकी रोटेशन है, ये उसकी रोटेशन है। अगर हम इसको मूव करते हैं तो देखिए ये रोटेट कर रहे हैं अपनी जगह पे। तो इसका मैंने वो कल वाले लेक्चर में जो बताया था कि ट्रांसफॉर्म में ये चीज़ें होती है। तो एक तो ये हो गया और दूसरा इस पे एनिमेटर लगा हुआ है। इसके जो भी मूवमेंट्स है या जो भी ये भाग रहा है या जंप कर रहा है या जो भी ये मूवमेंट कर रहा है, ये सारी इसकी एनिमेशंस बनी हुई है और इसकी एनिमेशन जो है ना ये इस एनिमेटर फाइल में सेव है। तो ये वाला एनिमेटर फाइल जिस भी कंट्रोलर पे होगा तो वो एनिमेट करेगा, या अगर ना हो इस पर तो वो एनिमेटर का काम है इसकी ये फाइल बनाना है, ये वगैरह इसकी एनिमेशन वगैरह बनाना। तो ये एक एनिमेटर हो गया हमारे पास। दूसरा कैरेक्टर कंट्रोलर है। कैरेक्टर कंट्रोलर में इसकी है जो इसका कैरेक्टर की हाइट है, इसकी वेड्थ है और इसकी जो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो ये सारा इसमें लिखा हुआ है। और दूसरा इस पे लगा हुआ है एक स्क्रिप्ट, ये है थर्ड पर्सन कंट्रोलर की स्क्रिप्ट। यानी जिस प्रोग्रामर ने ये एसेट बनाया है उसने ये स्क्रिप्टिंग की है और इस कैरेक्टर के लिए, ख़ास इस कैरेक्टर के लिए उसने ये स्क्रिप्ट बनाया है। तो इस स्क्रिप्ट में क्या क्या है, एक तो है इसमें प्लेयर दिया हुआ है, उसकी मूव स्पीड दी हुई है कि वो कितना फास्ट मूव करेगा, और उसकी स्प्रिंट स्पीड दी हुई है। स्प्रिंट मतलब भागने को कहते हैं। इसके भागने की स्पीड कितनी है, इसकी नॉर्मल चलने की स्पीड कितनी है, इसकी रोटेशन टाइम उसने दिया कि वो कितनी स्पीड से इधर उधर, यानी माउस रोटेशन की स्पीड उसने दी हुई है। और उसकी ऑडियो क्लिप भी इसने दिया हुआ है। सारा कुछ इसने ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई है। स्क्रिप्ट्स के अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं कि अंदर इसमें क्या क्या है। और परसों मैंने बताया था आप लोगों को कल के, जो भी हमारे पास स्क्रिप्ट में पब्लिक चीज़ें होती है, यानी कि हमारे पास होती है प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट होते हैं, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट होते हैं। जो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, उसकी रन टाइम पे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो इसकी जो स्पीड है, इसकी स्प्रिंट की स्पीड है, ये जो जितनी भी वैल्यूज़ है हम ये रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए तो इसमें एक पब्लिक फ्लोट मूव स्पीड, फ्लोट उस इंटीजर को कहते हैं जिसमें डेसिमल हो, यानी कि 2.0 इसमें डेसिमल है तो इसको हम फ्लोट बोलेंगे। एक होता है नॉर्मल इंटीजर जिसमें डेसिमल नहीं आता, एक होता है फ्लोट, और एक होता है डबल। डबल में भी इंटीजर होता है और डेसिमल भी होता है, लेकिन उसकी लेंथ काफ़ी लंबी होती है तो उसको हम डबल यूज़ करते हैं। और ये दूसरा हमारे पास है स्प्रिंट स्पीड, ये भी हमें फ्लोट में दिया हुआ है। इसी तरह ये भी पब्लिक है, ये भी जितनी भी पब्लिक चीज़ें हैं ये सारा कुछ ये हमें यहाँ पे एडिटर में ये शो हो रही है। अब पहले मैंने गेम प्ले की थी, आप लोग को इसकी स्पीड वगैरह सारा कुछ आपने देख लिया था। थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, यानी कि ये हम रन टाइम पे इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, इसकी स्प्रिंट स्पीड भी थोड़ी बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या करता है। इसकी नॉर्मल, ये अभी मैं नॉर्मल स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी 2 थी, अभी हमने 5 कर दिया, तो वो उसके मुताबिक उसने स्पीड ज़्यादा कर ली है। और जैसे ही हमने स्पीड ज़्यादा किया है तो उसका एनिमेटर खुद उसको पता चल गया है इसके एनिमेटर को कि अभी ये वॉक की एनिमेशन ही है, ये अभी भागने की एनिमेशन है, तो वो इसने भागने की एनिमेशन खुद ही इसने लगा ली है। अब अगर इसके साथ मैं शिफ्ट दबाता हूँ यानी स्प्रिंट का बटन दबाता हूँ तो इसकी स्पीड और भी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, नज़र आ रही है। ये नॉर्मल इसकी स्पीड है और ये इसकी स्प्रिंट की स्पीड हो गई है। तो इसी तरह इन वीडियो के साथ आप खेल सकते हैं, इन वीडियो को चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका इफ़ेक्ट आपकी गेम पे क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें
तो हमारे पास हमने जब प्रोजेक्ट ये किया था तो हमें एक चीज़ भूल गए थे कि उसे हमें एंड्रॉयड में कन्वर्ट नहीं किया था, और इसे हमने सारा कुछ इंपोर्ट कर लिया था। अब भी हम इसे अगर इंपोर्ट हमारे पास पूरी गेम भी बन जाए ना, उसके बाद ही हम इसको एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम ये चूँकि इसकी हमें APK बनानी है मोबाइल के लिए, तो एंड्रॉयड पे इसको कन्वर्ट करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम ज़रा देखते हैं कि ये मोबाइल के लिए जो है ना, इसके कंट्रोलर्स हमने डालने हैं। कंट्रोलर मतलब मोबाइल के बटन्स डालने हैं। मोबाइल में एक जॉयस्टिक होता है जिससे प्लेयर मूव करता है, और एक होता है उसके जो बाकी एक्शन के बटन होते हैं। एक्शन के बटन मतलब इनसे अगर जंप लगानी है तो जंप का एक अलग बटन होगा, इसलिए अगर फायर करनी है तो फायर का अलग बटन होगा। इस तरह के बटन हमने अभी डालने हैं इसमें। तो इस एसेट में हम मोबाइल फोल्डर में जाएंगे। मोबाइल फोल्डर में प्रीफेब्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो इन प्रीफेब्स से हम उठाएंगे इसकी कैनवसेस वगैरह। तो ये कैनवस हमारे पास है जी जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक की कैनवस उठा के हमने अपने उसमें डाल दिया है सीन में। तो हम गेम व्यू में आते हैं। गेम व्यू में हमारे पास अब बटन्स आ गए हैं। तो ये असल में है कैनवस, यानी जो भी हमारी UI होती है वो कैनवस के अंदर होती है। तो ये कैनवस हमारा सबसे ऊपर आ गया है, उसके अंदर ये जॉयस्टिक का बटन आ गया है। सीन में हम 2D में जाते हैं ताकि हमें जो है ना बटन क्लियरली नज़र आए। तो ये हो गया हमारा जॉयस्टिक का बटन। इसकी हम जो है ना वेट वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जॉयस्टिक का एरिया कम हो रहा है, ये एरिया ज़्यादा हो रहा है इसका, और इसकी पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट का हमने इसको थोड़ा ऊपर लेके जाना है, तो ये ऊपर नीचे सारा कुछ हम इसकी पोजीशन वगैरह स्क्रीन के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये हमारे पास है, ये लुक जॉयस्टिक है हमारे पास। लुक जॉयस्टिक पे इसने जो स्क्रिप्ट लगाई हुई है, स्क्रिप्ट में इसने ये काम किया है कि जिधर को वो लुक की का जॉयस्टिक जिस तरफ मोड़ेगा तो उस तरफ प्लेयर भी उसी तरफ लुक करेगा, मतलब उस तरफ देखेगा। ये जंप का बटन है हमारे पास, और ये हमारे पास स्प्रिंट का बटन है। और इस सारे को जो हम कहते हैं, ये जितने भी बटन हमारे पास बने हुए हैं, इसको हम UI कहते हैं, यूज़र इंटरफेस की जो चीज़ें होती है। गेम में हम इसको GUI भी कहते हैं, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो हमने ये मोबाइल के लिए डाल लिया है। अब इसके लिए हमें इवेंट सिस्टम भी चाहिए होता है, जो कि हमारे पास पहले से यहाँ पे मौजूद है। और दूसरा इनपुट सिस्टम भी हमारे लिए चाहिए होगा। अच्छा, इनपुट सिस्टम इसमें पहले से डिप्लॉयड है, तो हम डायरेक्ट करते हैं इसको अपनी उसके लिए। जैसे हम इसको रन करेंगे तो अब ये गेम्स के लिए जो है ना उसकी UI गेम्स के लिए आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी चूँकि हम लैपटॉप पे हैं तो गेम के तो ये मोबाइल पे हम ये बटन्स वगैरह वर्क करेंगे। और अभी हमारे जो कीबोर्ड के जो सिस्टम कीबोर्ड के जो बटन्स हैं वो भी स्टिल काम कर रहे हैं। वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमने उसकी जो इवेंट सिस्टम है और ये प्लेयर की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो हमने डिसेबल नहीं की कीबोर्ड के लिए। तो ये कीबोर्ड पे भी काम करेगा, और जब हम इसकी APK बनाएंगे तो मोबाइल के लिए काम करेगा। अब हमारे पास ये सीन जो है ना, ये सीन कंप्लीट हो गया है, मतलब ये काम कर रहा है। वो जो इसमें अगर किसी ने चेंजेस करनी है, ये एनवायरनमेंट में चेंजेस करनी है, कुछ भी करना है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। और सीन जब कंप्लीट हो रहा है, हमने APK बनानी हो तो उस पर सबसे पहले जाएंगे हम फाइल पे। फाइल्स के बाद हम बिल्ड सेटिंग में जाएंगे। बिल्ड सेटिंग में हम इसको अपने एंड्रॉयड सिस्टम के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसकी APK बनाएंगे।
तो पहले हम यहाँ से आए हैं, एंड्रॉयड पे हमने क्लिक किया है, एंड्रॉयड पे आके हमने इसको स्विच प्लेटफॉर्म पे क्लिक किया है। तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये सारा एंड्रॉयड पे हमारे लिए कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ तक कुछ समझ आ रही है? ये जो है ना इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है काफ़ी सारा कुछ। तो आप यूनिटी इंस्टॉल करेंगे, जब आप यूनिटी यूज़ करेंगे तो आपको सही समझ आएगी। अब ये आप सिर्फ देख रहे हैं तो वो चीज़ें आपको मतलब कि नज़र तो आ रही है, लेकिन आपने यूज़ नहीं की हुई तो आपको शुरू में ज़रा डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन जब आप ये यूज़ करेंगे तो इंतहाई ईजी है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और अच्छा, ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो घर में जाके अगर किसी को मसला होता है तो ग्रुप में वो मैसेज कर दिया करें, मैं उसको रिप्लाई दे दूँगा। जी, उसमें 4 बंदे कल भी नए ऐड हुए हैं और वो इसके पास है ग्रुप एडमिन, ये है ना, उसको बोलता हूँ। आप नहीं आए हो, आज ही आए हो सिर्फ? अटेंडेंस शीट पे नाम लिख दिया अपना? लिख दिया है वहाँ पे? अच्छा, ये प्रोजेक्ट हमारा कन्वर्ट हो गया है एंड्रॉइड पे। तो देखिए यहाँ पे अब पहले ये वाला जो आइकन था ये था विंडोज़ पे, अब आ गया ये एंड्रॉइड पे। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट कन्वर्ट हो गया है एंड्रॉइड पे। अब हम इसके प्लेयर सेटिंग में जाते हैं। अच्छा, प्लेयर सेटिंग में जाने से पहले ये अभी सीन्स एंड बिल्ड, मतलब कि हम जो APK बना रहे हैं उसमें कौन कौन से सीन्स शामिल हैं। तो अभी इसमें एक भी सीन नहीं है, और अगर हम इसमें सीन ऐड करेंगे तो हम जाएंगे वहाँ, हमने जो सीन ओपन किया हुआ हो तो डायरेक्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है कि ऐड ओपन सीन्स। तो हमारा जो ओपन सीन है वो डायरेक्ट आ जाता है सीन एंड बिल्ड में, यानी कि हम जब APK बनाएंगे तो इसमें ये वाला सीन आ जाएगा। जी हाँ, तो हाँ वो भी हो जाता है। दूसरा है कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आपने थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है मोबाइल्स की, क्योंकि मोबाइल की भी डायमेंशन चेंज होती है। कुछ मोबाइल होते हैं उनकी स्क्रीन ज़रा बड़ी होती है, कुछ जो होता है उनकी स्क्रीन छोटी होती है, तो उन डायमेंशन को भी आपने असल में देखना है अपने यूज़र्स को जो आपकी गेम इंस्टॉल कर रहा है। उसमें प्ले कंसोल में जो है ना, जहाँ पे आप APK अपलोड करते हैं अपने प्ले स्टोर पे ना, वहाँ पे आपको डिवाइसेस आ रही होती है जो लोग आपके एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं ना, तो उन डिवाइसेस में देखना है कि आपके मैक्सिमम जो है ना उनकी स्क्रीन कौन सी स्क्रीन वाले ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए रखनी है अपनी। और वैसे आपने अगर स्क्रीन चेंज करनी है ना, स्क्रीन की डायमेंशन, तो गेम्स में जाके ये अभी हमारे पास फ्री एस्पेक्ट में है। फ्री एस्पेक्ट में के ये किसी भी स्क्रीन पे भी चल सकती है, लेकिन इसमें ये इशू होता है कि कुछ स्क्रीन अगर छोटी हो तो इसमें बटन हाफ आएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने डायमेंशन दी हुई है। ये अब पोर्ट्रेट के लिए है, मतलब मोबाइल पे हम गेम अगर ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे मोबाइल पे गेम करते हैं, तो ये उसके लिए है। अब ये लैंडस्केप के लिए है, लेकिन इसकी स्क्रीन वेट जो है ना वो काफ़ी कम है, ठीक है, लैंडस्केप के लिए। तो हम थोड़ी ज़्यादा स्क्रीन वेट वाली रखेंगे। रिकमेंडेड जो होती है वो अक्सर 1280x720 होती है, तो मैक्सिमम मोबाइल पे ये काम कर जाती है।
हम जाते हैं पहले बिल सेटिंग में, वहाँ पे हम जाते हैं प्लेयर सेटिंग्स में। प्लेयर सेटिंग में प्लेयर में जाके हमने एक चीज़ देखनी है यहाँ पे जो स्टार्ट में मसला करती है, एक्टिव इनपुट हैंडलिंग। अब ये बोथ के लिए काम कर रहा है। वो जो मैं कह रहा था ना आपको कि ये कीबोर्ड पे भी चल रहा है और मोबाइल पे भी चल रहा है, तो वो इस वजह से चल रहा था कि यहाँ पे जो इनपुट हैंडलिंग इसकी थी वो बोथ थी, मतलब दोनों के लिए थी। अब अगर हम इसको मोबाइल पे डिप्लॉय करते हैं तो ये मैक्सिमम डिवाइस पे तो चलेगा, लेकिन कुछ मोबाइल जो है ना वो कीबोर्ड के इनपुट सपोर्ट नहीं करते, तो उस पर ये स्टक होगा ये गेम। तो हम इसको सिर्फ इनपुट सपोर्ट का जो है ना इनपुट सिस्टम पैकेज, जो नया पैकेज है उस पर अप्लाई करेंगे हम इसको। फिर भी स्टार्ट हो गया यार। वो क्या है ना, तो टाइम चेंज कौन से करते थे ज़्यादा? अच्छा, इसकी मिसिंग है बिल्कुल, वो है ही नहीं। है नहीं ना कम्युनिकेशन। इसके वो मिसिंग है, तो इसलिए ये कहाँ से इम्पोर्ट किया हुआ है, इसे स्टोर से इम्पोर्ट किया है। इम्पोर्ट कहाँ से किया था? एसेट स्टोर से। कहाँ जा रहा है? एसेट स्टोर से किया था। इसके वो सारे इसके बिल्कुल मटेरियल्स नहीं, मिशन है सारे, इसलिए ऑप्शन नहीं आ एक कुछ मटेरियल इसके मटेरियल है तो ये अच्छा है, लेकिन इसी मटेरियल को हम इस पर भी लगा सकते हैं। बस सिर्फ APK बनाते हैं, फिर मटेरियल काफ़ी है। अच्छा, इसकी सेटिंग को ज़रा देखते हैं कि अगर आपने अपनी कोई एप्लीकेशन जो है वो किसी मोबाइल पे अगर कोई बंदा इंस्टॉल करता है तो इसमें ऑप्शन दिया है कि आप कहाँ पे उसको प्रेफर करना चाहेंगे इंस्टॉलेशन इसकी। अगर आप इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो एक्सटर्नली करना चाहें, यानी कि आपका जो SD कार्ड है या जो भी डिवाइस पे कार्ड लगा हुआ है इसमें इंस्टॉलेशन आप उसकी करवाना चाहें तो एक्सटर्नल आप सेलेक्ट करेंगे। अगर उसकी इंस्टॉलेशन आप चाहते हैं कि उसके मोबाइल के अंदर हो तो इसका फोर्स्ड इंटरनल, मतलब उसके इंटरनल में इंस्टॉल हो जाएगा। और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स है इसमें। अच्छा, जब हम APK बनाएंगे तो APK के लिए हम डायरेक्ट जाएंगे बिल्ड में जाके हमने फ़र्ज़ कर यहाँ पे APK बनानी है तो एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अलग APK के नाम से। और अपने गेम का नाम दे देते हैं। और इसको सेव कर देते हैं। हमारे पास ये अब जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये APK बनने का प्रोसेस है। तो जैसे ये कंप्लीट होगा हमारी APK, हमारे पास जो फोल्डर हमने सेलेक्ट किया था उसमें आ जाएगी। जब तक ये होता है किसी को कोई मसला हो हाँ, ये मैं ग्रुप में सेंड करूँगा।
लेकिन इसके लिए जो शर्त है कि उसके लिए रेगिंग है वो एक जैसे होनी चाहिए, यानी कि अगर एक कैरेक्टर ह्यूमन आ जाए तो दूसरा वो आपने देखा है ना बस इम्पोर्ट ही करना फिर इधर आए यहाँ पे ये आया हुआ है ना ये वो आया हुआ है तो किस तरह करना ये अपडेट किया था इधर से क्या कर थोड़ा प्रैक्टिस करके आप खुद एक्सप्लोर करें, इसको नहीं होता तो मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास APK फाइल बन गई है, इसको अब हम टेस्ट करेंगे मोबाइल पे। तो मोबाइल के लिए किसी के पास डेटा केबल है? डेटा केबल टाइप C हो या कोई भी हो, टाइप C है, एंड्रॉयड की है। जब आप अपने मोबाइल लेके आए ना, मैं आपको इसी के अच्छा इधर आए जरा, इस
पे फाइल वाला ऑप्शन आता है? ब्लूटूथ नहीं, वो जो एक ऑप्शन होता है ना जिसमें डेटा केबल का ऑप्शन दे देते हैं कि वो ऑन करे ज़रा, फाइल शेयरिंग वाला। क्या होगा देख लो क्या लड़की की पोर्ट है आपके पास? इसमें हाँ इसमें USB पोर्ट अच्छा, कोई और मोबाइल दे दे ताकि हम ये पिके ज़रा चेक करें। मेरे पास टाइप सी है, तो वो टाइप सी नहीं, नॉर्मल जो एंड्राइड का मोबाइल है। टाइप सी केबल है, केबल है तो उसका शायद टाइप सी है। टाइप सी है। ना यार ये ज़रा आप देखिए, ये फाइल इसमें कहाँ से आता है फाइल का ऑप्शन? ये केबल मेरे ख्याल में फिर ये अभी ऑफलाइन इधर होगा सर। आपके गेम प्ले स्टोर में सर जो हम खेलें काफ़ी ज़्यादा है वो बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कंपनी के लिए जो बनाई है काफ़ी के लिए। ओके सर। फाइल मैनेजर में जाए आप, इसमें एक गेम में जाए, ये आ गई वाली ये प्ले स्टोर हो गया समझता। काम क्यों नहीं करता? कुछ मिसिंग हुआ, कुछ मिसिंग हुआ है देखते हैं। अच्छा, जारी स्टेट टारगेट प्लेयर यहाँ पे नहीं दिया हुआ। देखिए अब ये मिसिंग था, ये चीज़ यहाँ पे हमने टारगेट प्लेयर नहीं दिया हुआ। ये हम ऑन करते हैं, ये वाला इसमें प्लेयर प्लेयर की चीज़ें सारी दी हुई है।
यही पे ये चेक कर होने का होती है सर। यहाँ पे असल में इनपुट इंस्टॉल नहीं है सिस्टम। एमुलेटर की भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे अगर एमुलेटर हो ना। उसके लिए दोबारा बनाना होगा फाइल उसी को रिप्लेस। अगर यार दोबारा से ये इंस्टॉल हो रहा है। केबल लगाया आपने? पुरानी फाइल डिलीट कर दिया है मोबाइल से? ये सर वो डिलीट करे ज़रा। ये वाला ये भी अनइंस्टॉल करे और फाइल भी जो है ना अटेंडेंस दिला मला अटेंडेंस दिला मग देख सर बोलो वेट किलो मग वेट किलो में कितनी साइड लगाता है चलिए फिर दोबारा ये यहाँ से हो जाएगा डाउनलोड। नहीं वो नेम सर डाउनलोड नहीं करना बिल्कुल इंटरनल स्टोरेज में कनेक्ट हो गया। अब ये मैं सिम कर ये सर कौन वो बेटा है सब। आप ये इंस्टॉल करें ज़रा ये वाली। किसी और के पास टाइप सी मोबाइल है APK जिसने फर्ज कर लेनी हो तो वो ले लें वैसे ही टेस्ट करने के लिए। करने का टेस्टिंग क्या है? क्या टेस्ट कर रहे हैं? ये वाला ये जो APK बनाई है वो इसका हो रहा है सर अभी। ये है ना काम कर रहा है काम कर रहा है। ये है ना 100% कंट्रोलर कनेक्ट हो गया। किसी और ने लेनी हो तो आ जाए वो। लेकिन एक घर में जाके ना आ जाए घर में जाके ना जिनके इंस्टॉल है तो वो खुद से ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा तो उसका लिंक शेयर कर दूंगा ना और उस वीडियो से देख के ना ये चीज़ बना लें अपने लिए एक APK भी इंपोर्ट कर लें। आप
इसके फाइल एक्सप्लोरर पे जाएँ आप। तभी यहाँ पे चलिए मैं अपलोड करूँगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, या व्हाट्सएप में ग्रुप है वहाँ पर ना सेंड करना। लेकिन आपने अपनी भी एक बनानी है। सर वो ग्रुप नेट नहीं चल रहा है, इसका नहीं हो रही है। बस घर में जाके कर लेना अभी आप सबमिट करो। सर जो आपने ग्रुप नेट और सेंड किया है ना स्टेट्स वहाँ पे करना सारा हाँ सही हो रहा है, ये इंस्टॉल हो गए हैं, ये वाला भी हो रहा है। नहीं हो रहा है कब से सर ये नेट नहीं होगा ना, ये शुरू हो जाएगा। जैसे घर जाए ना इसको लगा ले नेट के साथ। बस ये दोनों ऊपर जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये तो हुई नहीं सारे ये क्यू में पड़े हैं, इसके बाद ये होंगे। ये भी करना है, ये वाले सारे ही करना है। यही शो हो रहा है, यही हो रहा है। सर ये वीडियोस भी शेयर कर देते हैं वहाँ से कौन सी वीडियो? जो पढ़ाए हाँ ये मैं शेयर करूँगा। एक और चीज़ है सर। हो गया था आपका रिजल्ट? वो असर है फिर सर एक लेवल 3 मॉड्यूल है इसका इसका इशू है बस सर आज के लिए काफ़ी एक बार में जाकर प्रैक्टिस करेंगे ना। बस है भी इतनी आज के लिए। अटेंडेंस पे करवाना है सर, लोगों को अटेंडेंस क्या सबका करवाना है। That's it for today's class and we will continue inshallah tomorrow.